Good morning students. So today we will be studying about leaf. Leaf is a very important part of the plant और आज हम उसके बारे में पढ़ने वाले हैं. What are the different kinds of leaves, different functions of leaf, then what are the modifications of the leaf and the parts of the leaf. So all this we are going to study in today's video. Okay. So starting with the chapter children. Now you all have seen the leaf. आपने सब ने लीफ देखी है, ठीक है. अब लीफ के बारे में जब हम पढ़ेंगे तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है दैट व्हाट इज़ द अदर नेम ऑफ द लीफ. लीफ का दूसरा नाम क्या है, उसको क्या बोला जाता है प्लांट का. लीफ इज़ नोन एज द किचन ऑफ द प्लांट. इज़ दैट क्लियर. लीफ को हम क्या कहते हैं, किचन ऑफ द प्लांट कहते हैं. वाई? Because the food is prepared in the leaf. Is that clear? That is the part of the plant where the plant is preparing the food. That is why it is known as the kitchen of the plant. Okay. Now before studying about the leaf, we will first study about the whole of the plant system. Clear? So before studying about the leaf, we will study about the whole plant system. Now children, plants are basically divided into two categories, flowering plants and non-flowering plants. Flowering plants कौन से होते हैं? Flowering plants as the name is वो होते हैं जो कि flowers bear करते हैं, जिनके plant पे flowers होते हैं. Okay. Then non-flowering plants are those plants which do not have flowers, जिनमें flowers नहीं होते हैं. Now parts of a plant. Now the plant is basically divided into two parts as you can see here. The part which is below the ground is known as the root system. क्या कहते हैं इसको? हम root system कहते हैं, जो कि ground के नीचे होता है. And that arises from the radicle of the seed. जब seed में एक छोटा सा plant निकलता है, बहुत छोटा सा sprout type निकलता है, तो उसमें जो नीचे को हिस्सा उगरा होता है जिससे रूट्स बनते हैं उसे हम कहते हैं रेडिकल. आर फॉर रेडिकल, आर फॉर रूट्स, ऐसे याद रखिए. ओके. देन जो ऊपर को हिस्सा बढ़ रहा होता है इनसाइड द सीड, छोटा सा प्लांट, नन्ना सा बिल्कुल, दैट पार्ट इज नोन एज द प्लिम्यूल और द शूट ऑफ द प्लांट. ओके. सो द root arises from the radicle of the plant or the seed, and the shoot system arises, or the part which is above the ground, it arises from the plumule of the seed. Is that clear? Okay. Now let's see the root system first. Root system children, it is basically formed of roots as you can see in the picture. उसमें roots होते हैं. They are non-green part of the plant. Okay. And they are found under the ground. Now what is the function of the root system? Root system का काम क्या होता है? Firstly, they absorb water and mineral salts. ठीक है. They absorb the water and mineral salts from the soil. And then secondly, they prevent soil erosion. So what is soil erosion? जब बहुत तेज़ हवा चलती है या बहुत तेज़ बाढ़ आती है, फ्लड आता है, तो सॉइल एक जगह से दूसरी जगह बह के या उड़ के शिफ्ट हो जाती है. दैट इज़ कॉल्ड सॉइल एरोजन. तो उसको कौन रोकता है? रूट्स रोकते हैं. रूट्स सॉइल को पकड़े रहते हैं, जिसकी वजह से सॉइल एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाती है. इज़ दैट क्लियर? ओके. Then another function of the root system is that it anchors the plants to the ground. यानी कि वो प्लांट को ग्राउंड पे खड़ा रखते हैं. रूट्स अपने को मजबूती से पकड़ लेते हैं, सॉइल को पकड़ लेते हैं मजबूती से, ग्राउंड को पकड़ लेते हैं, जिसकी वजह से प्लांट सीधा खड़ा रहता है. ओके. नाउ वी मूव ऑन टू द सेकेंड सिस्टम ऑफ द प्लांट, दैट इज़ द शूट सिस्टम ऑफ द प्लांट. शूट सिस्टम जैसा कि आप देख सकते हैं पिक्चर में, ऊपर का हिस्सा होता है. इट इज़ मेड अप ऑफ लीव्स, फ्लावर्स, बड्स, स्टेम्स, ब्रांचेस,
Okay, so these are the things which are found in the shoot system. Even the fruits, they are bare on the shoot system. Shoot system किससे बनता है? Plumule से बनता है. Is that clear? It is formed from the plumule. Now what is the function of the shoot system? Okay, now what are the functions of the shoot system? The function is that they hold the fruits, the flowers, leaves, branches, ये सब shoot system में ही होते हैं. Okay, then the second function is that the shoot system, it keeps the leaves straight and opened to the sunlight. Okay, then the next function is that it transports the absorbed mineral and salts to different branches, to different leaves, to different parts of the plant. Okay, so these are some of the functions of shoot system. Now we move on to next, that is the main part about which we are going to study today, that is the leaf. तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे leaf का structure. Now as you can see here children, leaf is a flat structure. It is absolutely flat. The blade of the leaf is absolutely flat. Now parts of leaf children. Now here you can see that there is a stalk which is holding the leaf. This stalk, इस stalk को जो कि leaf के नीचे आप देख सकते हैं एक डंडी निकली हुई है, इसको हम कहते हैं petiole. Petiole के नीचे आप देख सकते हैं कि एक फूला हुआ हिस्सा है, a swollen part is there, जिसको हम कहते हैं leaf base. Is that clear? Now petiole का क्या काम होता है? It joins the leaf blade to the plant. Is that clear? petiole जो होता है वो लीफ ब्लेड को प्लांट से जोड़ के रखता है. Is that clear? Now from where does the leaf arises? The leaf arises from the node of the stem. Stem पे nodes होते हैं अलग अलग जगह पे, उसमें से लीफ उगती है. Is that clear? Okay. Now leaves जिनमें की petiole होता है उन्हें हम कहते हैं stalked leaves. We call them as stalked leaves क्योंकि उनमें stalk है. Stalk means डंडी है, तो जिनमें petiole present होता है उन्हें हम कहते हैं stalked leaves, और जिनमें petiole absent होता है उन्हें हम कहते हैं sessile leaf. अब आप देख सकते हैं कि leaf का जो flat structure है, that is about which we are going to study. जो flat structure leaf का है which is green in color, that is called the leaf blade. Okay, और lamina of the लीफ. इसमें आप देख सकते हैं बीच में एक लाइन गई है. दिस सेंटर लाइन जो कि पीटियोल, जो कि आपका पीटियोल ही एक्सटेंड होके बीच में सेंटर लाइन बनाता है लीफ में, दैट सेंटर लाइन इज नोन एज द मिड रिब. क्या बोलते हैं उसको? हम मिड रिब बोलते हैं. देन फ्रॉम द मिड रिब यू कैन सी दैट देर आर सर्टन ब्रांचेस कमिंग आउट. छोटे छोटे वेन्स निकल रहे हैं, ठीक है, उन्हें हम बोलते हैं वेन्स. जो छोटे छोटे ब्रांचेस निकल रहे हैं वी कॉल देम एज वेन्स. उन वेन्स में आप देख सकते हैं कि और छोटे छोटे वेन्स निकले हुए हैं. तो जो सबसे छोटे छोटे वेन्स निकले हैं उनको हम कहते हैं वेनलेट्स. इज दैट क्लियर? नाउ व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दिस वेन एंड वेनलेट्स? वेन और वेनलेट्स का काम होता है ट्रांसपोर्टेशन का. वो लीफ में उनके मिनरल्स और सॉल्ट्स को लीफ में पहुंचाते हैं, अलग अलग जगह पे उसको ले करके जाते हैं, सो दैट द लीफ कैन प्रिपेयर द फूड, एंड दे ऑल्सो यूटिलाइज दैट मिनरल एंड सॉल्ट्स फॉर कीपिंग देमसेल्व्स हेल्दी. इज दैट क्लियर? सो दिस इज द मेन फंक्शन ऑफ द वेन एंड वेनलेट्स. नाउ द अरेंजमेंट ऑफ दीज वेन्स इन द लीफ इज़ नोन एज वेनेशन. किस तरह से ये वेन्स फैली हुई हैं लीफ में, इसको हम बोलते हैं वेनेशन. इस अरेंजमेंट को हम बोलते हैं वेनेशन, और ये दो तरह का होता है. फर्स्ट वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द फर्स्ट वन, दैट इज़ द रेटिक्यूलेट वेनेशन. रेटिक्यूलेट वेनेशन में क्या होता है? जैसा कि आप देख सकते हैं, द वेन्स आर स्कैटर्ड इन ऑल द डायरेक्शन. वो एक नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर बना लेते हैं, वो किसी भी डायरेक्शन में रैंडमली मूव करते हैं वेन्स. इज दैट क्लियर? रैंडमली स्प्रेड होते हैं किसी भी डायरेक्शन में. सो दिस इज कॉल्ड रेटिक्यूलेट वेनेशन. जबकि द सेकेंड काइंड ऑफ वेनेशन इज पैरेलल वेनेशन. इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम रेटिक्यूलेट. इसमें
जो वेन्स होते हैं वो एक दूसरे के पैरेलल मूव करते हैं, एक दूसरे के पैरेलल मूव करते हैं. इज दैट क्लियर? So that movement in which the veins are moving parallel to each other or side by side to each other, एक दूसरे के अगल बगल होते हैं, that is called the parallel venation. Now, in order to study about these two venations, I would like you to gather two kind of leaves. पहला एक रोज़ की लीफ आप लेकर के आइएगा और दूसरा एक बनाना लीफ लेकर के आइएगा और उन दोनों को कंपेयर करके देखिएगा. एंड देन यू सी विच वन इज़ हैविंग विच काइंड ऑफ वेनेशन. आप देखेंगे कि रोज़ में रेटिकुलेट वेनेशन है रोज़ की लीफ में, और जबकि बनाना की लीफ में पैरेलल वेनेशन है. सो दैट विल मेक इट मोर क्लियर टू यू. इज दैट क्लियर? ओके. देन वी मूव ऑन टू सिंपल एंड कंपाउंड लीफ. नाउ दो तरह की लीव्स होती हैं. वन इज़ सिंपल लीफ. सिंपल लीफ जैसा कि आप देखते हैं सारे प्लांट्स में, लाइक इन द केस ऑफ मैंगो प्लांट, पीपल प्लांट, उसमें आप देखेंगे कि जो लीफ ब्लेड होता है या लीफ मार्जिन होता है, साइड्स होते हैं लीफ के, जो साइड का मार्जिन होता है लीफ का, दैट इज़ नॉट डिवाइडेड, वो एक सिंगल लीफ होती है. सो दैट काइंड ऑफ लीफ इज़ नोन एज सिंपल लीफ. एंड द एग्जाम्पल ऑफ सिंपल लीफ इज़ mango, banana, they are all the example of simple leaf. Then the second kind is compound leaf. Compound leaf में क्या होता है कि जो sides होते हैं लीफ के, जो लीफ ब्लेड होता है या लीफ मार्जिन होता है, वो छोटे छोटे और लीव्स में डिवाइड हो जाता है, छोटे छोटे लीव्स में कट होकर के डिवाइड हो जाता है. तो वो छोटी छोटी लीव्स जो होती है, जब हम उन्हें एक साथ देखें तो वो एक बड़ी सी लीफ बनाती है. सो दिस, बिकॉज ऑफ दिस डिविजन इनटू स्मॉलर लीव्स, उस लीफ को हम कहते हैं कंपाउंड लीफ. नाउ फंक्शंस ऑफ द लीफ. नाउ देयर आर थ्री इंपॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ द लीफ चिल्ड्रन. फर्स्ट इज फोटोसिंथेसिस. नाउ व्हाट इज फोटोसिंथेसिस? फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें कि लीव्स अपना फूड बनाते हैं, अपना खाना बनाते हैं. ओके. नाउ हाउ दिस फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस? फर्स्टली, if you have noticed that leaves are basically green in color. Now this green color pigment which is found in the leaf, it is known as chlorophyll. इसको हम क्या कहते हैं? ग्रीन कलर पिगमेंट को, जिसकी वजह से लीफ ग्रीन दिखती है, we call it as chlorophyll. क्लोरोफिल क्या होता है? क्लोरोफिल सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ करके it forms the food of the plant. Is that clear? That food of the plant is produced in the form of glucose. और ये जो ग्लूकोज होता है, it is converted into starch and then it is stored inside the plant, ताकि वो उस फूड को अपने लिए यूटिलाइज कर सके. And oxygen and water is released into the atmosphere in return. Is that clear? So this is the first function of the leaf. Then second, transpiration. Transpiration क्या होता है? Now children, आपने देखा होगा जब बहुत गर्मी पड़ती है तो आपको क्या होता है? Sweating होती है, पसीना आता है. Okay. Now transpiration is a kind of sweating in the plant. आप कह सकते हैं जब plant sweat करते हैं तो उस process को हम कहते हैं transpiration. Now what happens in transpiration? Plants, they absorb extra water because roots, they don't know कि how much water they have to absorb. तो वो क्या करते हैं? Water absorb करते जाते हैं. जो extra water होता है वो plants में आता जाता है. But this extra water is lost from the plants in the form of transpiration. तो आप अगर देखेंगे तो leaves पे छोटे छोटे pores होते हैं. Very tiny pores are there on the leaves. What do we call those pores? They are known as stomatas. और इन्हीं pores से extra water बाहर environment में release हो जाता है. So this process of releasing the extra water in the environment is known as transpiration, and it is done by the leaves of the plant. Now the next function of the leaf is respiration. Now children,
as I explained you just now about photosynthesis. Okay, now what happens, डे टाइम में प्लांट्स जो होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं फॉर मेकिंग देयर फूड, दे टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड, और जब उनका फूड बन जाता है दे रिलीज आउट ऑक्सीजन, ठीक है। बट इन द नाइट, जब रात होती है तो देयर इज़ नो सनलाइट, जिसकी वजह से फोटोसिंथेसिस रुक जाता है, प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब नहीं करते हैं। तो रात में प्लांट्स क्या करते हैं, दे एब्जॉर्ब ऑक्सीजन, वो ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ते हैं। दिस इज़ वन ऑफ द रीज़न वाई वी शुड नॉट स्लीप एट नाइट अंडर द ट्री, क्योंकि रात को वो ऑक्सीजन नहीं छोड़ते हैं, रात में तो वो ऑक्सीजन खुद लेते हैं। इज दैट क्लियर? सो दैट कैन कॉज हार्म टू यू. So that is why it is said that we should not sleep under the tree in the night. Clear to all of you? So these are the functions of the leaf. Now we move on to modification of the leaves. Now children, leaves जो होते हैं वो अलग अलग तरह से अपने को environment से adapt करते हैं, temperature से अपने को adapt करते हैं। अलग अलग जगह पे जब plants उगते हैं, जैसे कि कुछ plants desert में उगते हैं, कुछ plants पानी में उगते हैं, कुछ प्लांट्स जो होते हैं वो एरियल होते हैं, कुछ प्लांट्स जो होते हैं वो आपका ग्राउंड से जुड़े होते हैं। तो डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लांट्स आर देयर जो कि अलग अलग एनवायरनमेंट में उगते हैं। कुछ बहुत ठंडे एरिया में उगते हैं, कुछ बहुत गर्म वाले टेम्परेचर में उगते हैं। तो क्या होता है कि लीव्स अपने को मॉडिफाई कर लेते हैं, उसके हिसाब से अपने को अपने अंदर चेंजेस ले आते हैं ताकि वो उस टेम्परेचर में सर्वाइव कर सकें। तो इन चेंजेस को हम क्या बोलते हैं, मॉडिफिकेशन. So now there are different modifications of the leaf about which we will be studying. The first modification is leaf tendrils. Now leaf tendril children, इसमें क्या होता है, इसमें क्या मॉडिफिकेशन होता है लीफ में कि कुछ लीव्स जो होते हैं वो अपने को एक वायर लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट कर लेते हैं. दे फॉर्म अ वायर लाइक स्ट्रक्चर. अगर आप पुराने ज़माने का टेलीफोन देखेंगे तो उसमें एक कॉइल्ड वायर होता था. इसी तरह से ये लीव्स जो होती हैं वो कॉइल्ड वायर लाइक स्ट्रक्चर बना लेती हैं इन ऑर्डर टू सपोर्ट द प्लांट. ये उनमें होता है जिनमें प्लांट्स वीक होते हैं. तो उनको सपोर्ट करने के लिए, उनको सीधा खड़ा रखने के लिए क्या होता है कि वो वायर लाइक स्ट्रक्चर बना लेती हैं ताकि वो उनको होल्ड कर सकें, उन प्लांट्स को सीधा रख सकें. ओके, लाइक इन द केस ऑफ पी प्लांट. देन द नेक्स्ट मॉडिफिकेशन इज स्पाइन्स फॉर conservation of water in the plant and for protection also. Now spines आपको किस में देखने को मिलते हैं, कैक्टस में. कैक्टस is one of the example of that. आप अगर जाएंगे तो आप देखेंगे कि डेजर्ट में बहुत कम पानी होता है. There is very less water in the desert area. तो डेजर्ट एरिया में क्या होता है कि लीव्स अपने को मॉडिफाई कर लेते हैं और वो बन जाते हैं स्पाइन्स. छोटे छोटे कांटे फॉर्म में बन जाते हैं, कांटे उगाते हैं. तो जो कैक्टस पे कांटे होते हैं दे आर द लीफ ऑफ द कैक्टस. इज़ दैट क्लियर? और ये कांटे बन जाते हैं, ये पतले हो जाते हैं. ये इसलिए पतले हो जाते हैं ताकि इनमें से ट्रांसपिरेशन ना हो. जब इनमें से ट्रांसपिरेशन नहीं होगा तो वाटर लॉस नहीं होगा. वाटर लॉस नहीं होगा तो प्लांट ऐसे जगह में जहाँ पानी की कमी है आराम से सर्वाइव कर जाएगा. इसलिए उनकी लीव्स जो होती हैं वो स्पाइन बना लेती हैं, छोटे छोटे कांटे फॉर्म में हो जाती हैं. और वो उन्हें प्रोटेक्ट भी करते हैं ताकि एनिमल्स आके उन्हें खा ना जाए. क्योंकि अगर उन पे स्पाइन्स नहीं होंगे तो एनिमल्स आके उन्हें खा लेंगे पानी के लिए. उन्हें प्यास लगेगी तो वो कैक्टस को खा लेंगे क्योंकि कैक्टस में ढेर सारा पानी होता है. ओके, सो दीज स्पाइन्स दे प्रोटेक्ट द प्लांट फ्रॉम द एनिमल्स एंड दे इवन स्टॉप्स द ट्रांसपिरेशन. इज दैट क्लियर? नेक्स्ट मॉडिफिकेशन इज़ स्केली लीव्स. स्केली लीव्स आपने देखे होंगे जिंजर में और अनियन में. अगर आप जिंजर को ध्यान से देखें तो यू विल सी दैट जिंजर के ऊपर जो लीव्स होती हैं दे आर वेरी ड्राई. आप जिंजर उठा के देख सकते हैं, वो एकदम ड्राई होती हैं और उनका मेन फंक्शन होता है टू प्रोटेक्ट द बड्स ऑन द जिंजर. ओके, देन अगर आप अनियन उठा के देखेंगे तो आप देखेंगे उसके जो अलग अलग पील्स होते हैं उसको आप देख सकते हैं कि वो क्या होते हैं, वो लीव्स होते हैं. वो मॉडिफाई हो गए हैं इनटू फ्लैशी लीव्स.
Is that clear? And what is the function of the fleshy leaf? Fleshy leaves, they store the food. So the onion that is you are holding, the part which you can see, which you cut and eat, that is the fleshy leaves found in the onion. Is that clear? Okay. Okay, then insectivorous plants. Insectivorous plants कौन से होते हैं? As the name is insectivorous plants, ये insects को खाते हैं. Insectivorous, that means ये insects को खाते हैं. Okay, now why do they consume insects? ना जहाँ पे ये उगते हैं, there the soil is swampy, यानी वहाँ पे बहुत कीचड़ होती है चारों तरफ. ओके, दलदल टाइप होता है और वहाँ पे ये प्लांट्स उगते हैं. तो वहाँ पे स्वैम्पी एरिया होने की वजह से देयर इज़ शॉर्टेज ऑफ नाइट्रोजन. तो इन्हें नाइट्रोजन की कमी होती है. इन ऑर्डर टू ओवरकम दैट डेफिशिएंसी ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन की कमी से उभरने के लिए ये क्या करते हैं? दे ईट द इंसेक्ट्स. And in order to eat the insects, their leaves are modified into different shapes. अलग अलग shapes में modify हो जाती हैं, so that they can catch the insect and eat them. Okay, like the first example is pitcher plant. Pitcher plant, as the name is, you can see children over here that it is in the form of a pitcher. एक सुराही की तरह ये दिखता है, जिसमें पानी रखते हैं, सुराही उसकी तरह ये दिखता है. Okay, इस सुराही में क्या होता है? Now this is, what is this सुराही made up of? What is this pitcher made up of? The pitcher is the लीफ लैमिना. लीफ लैमिना वो बना लेता है पिचर, पिचर के शेप में आ जाता है. इज दैट क्लियर? और पीटियोल क्या बन जाता है? द पीटियोल टर्न्स इन द फॉर्म ऑफ अ लीफ. दिस इज हाउ द लीफ ऑफ द पिचर प्लांट टेक्स द शेप ऑफ अ पिचर. जब इस पिचर प्लांट पे कोई भी इंसेक्ट बैठता है तो आप देख सकते हैं कि वो इंसेक्ट इस पिचर के अंदर चला जाता है और उसके ऊपर जो फ्लैप लगा है वो क्लोज हो जाता है, so that the insect stays inside the pitcher and the different juices are secreted by the pitcher inside the insect is digested. Is that clear? वो insect अंदर ही digest हो जाता है अलग अलग juices के वजह से, and it is consumed by the plant. Then the next is bladderwort. Bladderwort is the another insectivorous plant. एंड इन दिस व्हाट यू कैन सी कि जो लीफ होती है वो एक ब्लैडर का फॉर्म ले लेती है. इज दैट क्लियर? एक सैक लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्म ले लेती है सो दैट इट कैन ईट द इंसेक्ट. देन द नेक्स्ट इज वीनस फ्लाई ट्रैप. You can see here children that the lamina of the leaf is divided into two parts. वो दो फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर में डिवाइड हो जाते हैं और उनके मार्जिन पे, उनकी किनारी पे आप देख सकते हैं स्पाइन लाइक स्ट्रक्चर्स उग जाते हैं. दे आर द टीथ्स ऑफ द वीनस फ्लाई ट्रैप. और जब कोई इंसेक्ट आ करके, दे आर ऑलवेज ओपनड, जैसे ही कोई इंसेक्ट आ करके बैठता है बीच में, द लैमिना क्लोजेस and these spines they entangle with each other, एक दूसरे में फंस जाते हैं ताकि इंसेक्ट बाहर ना निकल पाए, और लैमिना तब तक बंद रहता है जब तक वो इंसेक्ट को पूरी तरह डाइजेस्ट ना कर ले. इज दैट क्लियर? सो दीज आर सम ऑफ द इंसेक्टिवोरस प्लांट्स. नाउ द नेक्स्ट इज द सनड्यू प्लांट. नाउ सनड्यू प्लांट चिल्ड्रन आप देख सकते हैं पिक्चर में, इट लुक्स वेरी ब्यूटीफुल. और इसमें से क्या सेक्रीट होता है? एक स्टिकी सब्सटेंस सेक्रीट होता है जिसे हम कहते हैं म्यूसिलेज. ओके, तो जब भी कोई इंसेक्ट आता है इसके ऊपर बैठता है तो वो उसमें चिपक जाता है. इट गेट्स स्टक टू द प्लांट और फिर प्लांट उसको खा लेता है, उसको पूरी तरह से उसके अंदर के जूसेस को एक्सट्रैक्ट कर लेता है. इज दैट क्लियर? सो दिस इज हाउ द सनड्यू प्लांट टेक्स इट्स न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द insect. Now vegetative propagation in leaf. Now children, generally क्या होता है कि कोई भी नया प्लांट जो उगता है वो सीड से उगता है, बट कुछ प्लांट्स होते हैं जो प्लांट के अलग अलग पार्ट से भी उगते हैं. जैसे कि रूट के पार्ट से एक नया प्लांट उग सकता है, स्टेम के एक पार्ट से नया प्लांट उग सकता है, इसी तरह लीफ के भी पार्ट से एक नया प्लांट उग सकता है. सो द वेजिटेटिव प्रोपोगेशन इन द लीफ you can see in Bryophyllum and Begonia. Begonia and Bryophyllum are a very good example of vegetative propagation in the leaf. जैसा कि आप पिक्चर में देख सकते हैं, इसकी लीफ के किनारी पे आप देखिए छोटे छोटे प्लांट्स उगे हुए हैं.
ये छोटे छोटे प्लांट्स जब सॉइल के कांटेक्ट में आते हैं तो ये एक न्यू प्लांट को अराइज करते हैं. यू कैन से दैट दे अराइज अ न्यू प्लांट. एक नया प्लांट उनमें से निकलता है या पैदा होता है. इज़ दैट क्लियर? फ्रॉम दीज स्मॉल प्लांट्स. अगर आप ये छोटे से प्लांट को कहीं ले जा कर के सॉइल में सो कर देंगे, कहीं सॉइल में रख देंगे, तो इट विल ग्रो इनटू अ न्यू plant. Is that clear? So this is the vegetative propagation by leaf. Now I hope my video has made the chapter very clear to you. So in our next class I will meet you with another new lesson of biology. Thank you for joining. Stay healthy, stay blessed. Take care. Bye bye.